Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Gemini Ascendant and the predictions for the month of October 2023. So for your Ascendant, the Ascendant Lord Mercury is going to transition through the 4th house till 18th of October, and then it is going to move into the 5th house where it is going to stay till 15th of November. What it means is that the first half of October is going to be mentally very peaceful for you, since this ascendant is also going to be aspected by the fifth aspect of Jupiter. You may get an opportunity to buy a property in this month, but if you decide to do so, please check all the property related documents very rigorously and preferably through a professional in order to avoid any kind of a unforeseen problem that may arise due to this presence of Rahu with Jupiter. Time frame from 18th of October to 5th of November will be very good to spend time with your kids and improve your relationships with them. This will also give you an opportunity to acquire some new skill set, and you should look out for building skills that are related to your domain. After 18th of October, the third house lord and fifth house lord are going to exchange their places. So Sun will be in the house of Venus and Venus will be in the house of Sun. So this means that your kids will also experience a very good time, especially if they are adults, and you will see their progress in this month in the time frame of 18th October to 15th November, and this progress will also give you a lot of happiness. So overall, this is a very good month if you look at it from the perspective of mental peace as well as from your progeny. Mars is the lord of your sixth house, which shows service, and the 11th house, which shows gains, and it is going to transition through your fifth house from 3rd of October to 15th of November. Jupiter is your lord of profession and it is retro. Saturn is a natural significator of karma, and this was also retro in the month of October. So the progress is going to be extremely slow on the professional front. You will see that things are not moving in your job or business, and this might become a point of frustration for you in this month. Your ascendant people have the ability to observe people very accurately, and this helps your ascendant to succeed in domains that are related to dealing with public. So if you happen to be in politics or any kind of a field where you deal with the common public, then again this month will provide good results to you. In the second half of October, the atmosphere at the workplace is going to become very routine and boring for you due to both these Jupiter and Saturn turning retro. But if you are currently not holding any job and you're looking for a new job, then time frame for 29th and 30th of October is very good for finding any new kind of a job. One negative thing that is happening is the conjunction of Mars and Ketu in the fifth house. So from 18th of October, Sun is also going to join here. Sun is a malefic planet, so are Mars and Ketu, and Rahu is also going to aspect the fifth house. So there is going to be an accumulation of energy of four planets, and all of them are malefic for you in the fifth house. So what it means is that this month is not going to be a very good time for people who are speculators or people who are involved in any kind of a creative work, because this combination would mean that you should stay away from the markets in the month of October, otherwise you may see some serious losses. Students on the other hand will continue to get the benefic aspect of Jupiter, and since Jupiter itself indicates knowledge and education, so for students this month will not be as bad as it will be for the speculators. So if you want to appear for any kind of a competitive exam, then time frame from 19th to 28th of October is going to be very beneficial for you. And if you happen to appear for any kind of an exam, then the probability is very high that you will end up clearing that exam. People who are looking for some kind of a positive cash flow, they should see a positive month, especially the first half of October, and time from 13th and 14th of October, 2 days are very beneficial when we talk about the finance perspective. The seventh house lord Jupiter is in the 11th house and it is also aspecting its own house. So this month is fruitful from the perspective of getting married, and the best time frame for getting hitched is on 23rd and 24th of October. And this will be even more beneficial if you are planning for an intercaste marriage.
because Jupiter is combining here with Rahu, and Rahu itself indicates things that are alien to us. For all the Gemini ascendant, Jupiter is the owner of 7th as well as 10th house. So if you happen to visit religious shrines or places with your spouse, then it usually works out very well for your ascendant, and this is something which you should adapt as a practice going forward. Now there are also certain dates where you need to be very careful, and these are the dates when moon passes through your 6th, 8th and 12th house. So during these days it is observed that due to the angle that these houses create with respect to you, that is the first house, whenever moon passes through these houses, then your decision taking ability is impacted. Sometimes you suffer from health issues, or sometimes you also suffer from the outflow of money. So the days where you need to remain cautious in the month of October are 2nd and 3rd of October, 9th and 10th of October, 21st and 22nd of October, and 25th and 26th of October. Just remain cautious during these 8 days. Overall, this is a pretty good month for you because the benefic placement of the ascendant lord in the 4th and 5th house itself is taking good care of you in this month. So that's the summary for you. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करें कि मिथुन लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, अगर हम बात करें लग्नेश की, तो लग्नेश बुध 18 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना हाउस वाइज बहुत अच्छा पोजीशन है, और यहाँ पर बुध अपने ही भाव में बैठा हुआ है। तो आपको 18 अक्टूबर तक आपके घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, सुख शांति का, आपको मानसिक सुकून मिलेगा। और इस पर गुरु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मौका आ सकता है इस महीने में। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए और जमीन के कागजातों की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु के साथ राहु भी बैठा हुआ है। तो इस तरह का कोई कागजी धोखाधड़ी होने की संभावना बनती है। तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके अगर वो वेट कर देते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम वाला बात हो जाता है। इसके अलावा 18 अक्टूबर से 5 नवंबर तक दो चीजें हो रही हैं। एक तो आपका लग्नेश भी पंचम भाव में मूव कर जाएगा और सूर्य भी 5वें भाव में मूव कर जाएंगे। तो 5वें भाव में आप देखिए कितने सारे ग्रह जमा हो जाएंगे। सूर्य बैठा होगा, बुध बैठा होगा, केतु मंगल बैठे होंगे, 4 ग्रह यहाँ हो गए, और उस पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। तो कुल मिला के आपके 5वें हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स का जमावड़ा हो जाएगा। केतु मंगल बुध सूर्य 4, और उस पर राहु की दृष्टि यानी 5। गुरु की दृष्टि तो बेनिफिक होती है, लेकिन अगर आप देखें तो मेलिफिक प्लैनेट्स का ही जमावड़ा ज्यादा होगा। 5वें भाव में बहुत ज्यादा ऊर्जा भर जाएगी। इसके अलावा 18 अक्टूबर से 5 नवंबर तक तृतीय और पंचम भाव के स्वामी का भी आपस में स्थान परिवर्तन होगा। तो जब आप ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये समय आपको अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उनकी तरक्की देख पाएंगे, खास करके अगर वो उम्र में बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, तो वो अपने भी प्रोफेशन या डोमेन में अच्छा करेंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छी खबर मिलेगी। बच्चों की उन्नति होते हुए आप देखेंगे। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनके साथ समय बिता सकते हैं। इस समय में आपको उनके साथ रैपो बिल्ड करने में ये समय बहुत मददगार साबित होगा। चूंकि इतने सारे ग्रह यहाँ पर बैठ जाएंगे आके, तो पंचम भाव से जुड़ा हुआ काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर समय बहुत ही मुश्किल भरा होगा। खास करके अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो अक्टूबर में बिल्कुल बाहर हो जाइए सेकंड हाफ में, तो नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना बनती है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ के इस ऊर्जा को और ज्यादा बलवान करने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु स्वयं ही एजुकेशन का कारक है और उसकी दृष्टि भी पंचम भाव पे पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय सेकंड हाफ में बहुत अच्छा है। 19 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो उसमें आपके उत्तीर्ण होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपके लग्न के लिए मंगल 6वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, और वो पंचम भाव में बैठे रहेंगे। तो 6वें भाव के स्वामी का पंचम भाव से गुजरना 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, यानी वैसे ही सर्विस का एक तरह से नेगेशन हो जाता है। इसके अलावा आपके कार्यस्थल पे शनि भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं। तो गुरु आपके लग्न के लिए कर्म कारक है, क्योंकि वो दशम भाव का स्वामी है, और शनि कुल मिला के ही मतलब नेचुरल सिग्निफिकेटर है कर्म का। तो आपको अपने कार्यस्थल पर चीजें बहुत धीमी होती हुई दिखाई देंगी, चीजें मूव ही नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आपको
फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है। तो ये एक समय थोड़ा सा टेढ़ा है अगर आप जॉब की दृष्टि से बात करें तो, क्योंकि चीज़ें आपकी मूव नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं या आप किसी भी तरह के पब्लिक डोमेन में डील करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम लोग बहुत सारी जनता को आते जाते देखते हैं, बैंक के काउंटर्स पे जैसे टेलर बैठते हैं, रेलवे के टिकट काउंटर पे लोग होते हैं, जहाँ पे आपका सामना कंटिन्यूअसली लोगों के साथ होता है। राजनेता तो एनीवेज लोगों से कंटिन्यूअसली डील करते ही हैं। तो उन सब के लिए सेकंड हाफ का समय फिर भी थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय कुछ खास अच्छा नहीं, क्योंकि ये समय में कुछ होगा नहीं। वैसे ही आप रूटीन बना के जा रहे हैं, वही चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा उसकी वजह से आप में फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। लेकिन अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं, या ऐसे लोग जिनके पास नौकरी नहीं है और वो ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आखिरी का समय अच्छा है, यानी 28, 29, 30 अक्टूबर का समय अच्छा है नई नौकरी ढूंढने के। अगर आप लिहाज से देखें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे पंचम भाव इतना मजबूत हो रहा है, तो स्पेक्यूलेशन वाले लोग बिल्कुल दूर रहिए, नहीं तो ये हाथ जलाने वाली बात हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कैश फ्लो की दृष्टि से देखेंगे तो महीने के बीच का समय बहुत अच्छा है, यानी 13, 14, 15 अक्टूबर, ये 3 दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आप पैसे के आगमन की बात करें तो इस समय में अच्छा कैश फ्लो आने की उम्मीद है। आपके लग्न के लिए सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, वो 11वें भाव में बैठा हुआ है और अपने ही भाव को देख रहा है नवी दृष्टि से। तो यह शादी करने के मौके तो बनाता है। अक्टूबर के महीने में 23 और 24 अक्टूबर सबसे अच्छे दिन है अगर आप शादी करने की दृष्टि से देखें। और ये दिन में परिणाम और अच्छा मिलेगा अगर आप इंटरकास्ट यानी अंतर जातीय विवाह करना चाहते हैं तो, क्योंकि राहु स्वयं ही अंतर जातीय और विदेशी चीजों का कारक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई साउथ में रहने वाला व्यक्ति नॉर्थ के व्यक्ति से शादी करता है, तो उनके कस्टम रीति रिवाज सब आपके लिए अननोन हुए, तो वो भी एक तरह से राहु का ही प्रभाव दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप भारत में बैठे हैं तो आपको विदेश में ही किसी व्यक्ति से शादी करनी है। भारत में भी ऐसा दूर दराज का कोई व्यक्ति हो तो वो भी आपके लिए एलियन ही कहलाएगा। तो वो उस तरह का विवाह होने की संभावना में परिणाम और अच्छा मिलने की उम्मीद है 23 और 24 अक्टूबर को। वैसे अगर आप स्वयं की कास्ट में शादी करना चाहते हैं तो नवंबर तक रुक जाइए। इसके अलावा गुरु आपके लिए सप्तम और दशम भाव के भी कारक होते हैं। सप्तम से आप व्यवसाय पति पत्नी देखते हैं, दशम भाव से आप अपना प्रोफेशन भी देखते हैं। तो यहाँ पे और गुरु स्वयं नवा भाव का कारक बनता है कालपुरुष की कुंडली में। तो अगर आप अपने पति पत्नी के साथ कोई भी रिलीजियस श्राइन्स में जाते हैं, यानी मंदिरों में जाते हैं, या जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से आप अपने तीर्थ स्थल पे, धार्मिक स्थल पे यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं रेगुलरली, तो आप उसको एज अ डिसिप्लिन अपने रोज के जीवन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मिथुन लगने के लोगों के लिए अगर ये ऐसे रिलीजियस जगहों पे जाते रहते हैं अपनी स्पाउस या पार्टनर के साथ, तो उनके लिए जनरली बहुत फेवरेबल चीज होती है एज अ प्रैक्टिस। इस महीने की बात नहीं कर रहा हूँ खाली, अगर आप इसको एज अ प्रैक्टिस अपना सके तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए, और ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 स्थानों से निकलता है। तो जनरली इन स्थानों से जब भी चंद्र निकलता है, तो चूंकि ये दुस्थान है, तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। कई बार व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। कई बार ये दिन आपके लिए पैसे की दृष्टि से बहुत भारी पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं, खर्चा हो जाता है, कई बार हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपके ग्रहों की क्या स्थिति है। तो इन दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए, कोई भी की डिसीजन लेना टालना चाहिए। तो ये दिन आपके लिए 2 और 3 अक्टूबर, 9 और 10 अक्टूबर, 21 और 22 अक्टूबर और 25 और 26 अक्टूबर, इन 8 दिनों में आप सावधान रहिए। आप देखेंगे अगर कुल मिला के तो लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है। एक तो पहले 18 दिन अपनी राशि में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव भी बहुत अच्छा है, और फिर उसके बाद पंचम भाव में भी अपनी मित्र राशि में बैठा रहेगा, तुला राशि में। हालांकि यहाँ पे जो ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है उसकी वजह से पंचम भाव से जुड़े हुए चीजों के परिणाम में आपको बहुत ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। लेकिन अदरवाइज देखेंगे तो लग्नेश की स्थिति मजबूत होने की वजह से समय आप अच्छा ही बोल सकते हैं। तो आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।